بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج آپ دوستوں کے سامنے جو کہانی بیان کی جائے گی یہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار کی اتنی خوبصورت کہانی ہے جسے سن کر آپ حیرت کے سمندر میں کھو جائیں گے۔ یہ کہانی 3 مختلف لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں اندھا فقیر، مردہ کھانے والی عورت اور حسن ہیبال ایک تاجر کی۔ ناظرین، اس کہانی کے 2 حصے ہیں۔ اس کہانی کے پہلے حصے میں ہم اندھے فقیر کا واقعہ بیان کریں گے، جبکہ دوسرے حصے میں ہم مردہ کھانے والی عورت اور حسن ہیبال تاجر کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو پیش خدمت ہے اندھا فقیر خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں۔ خلیفہ ہارون الرشید، جو کہ بغداد کے خلیفہ تھے، آپ کا شمار دور ماضی کے نیک اور ذمہ دار خلفاء میں کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی رعایا کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے اور جو بھی ان کی فلاح اور بھلائی کے لیے ممکن ہوتا وہ کرتے۔ اس امر کے لیے آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنے خاص وزیر کے ساتھ بھیس بدل کر رات کو بغداد کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تاکہ لوگوں کے احوال سے واقف ہو سکیں۔ ایک دن ہارون الرشید کے وہ خاص وزیر جعفر آپ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ نہایت افسردہ اور گہری سوچ میں گم ہیں۔ جعفر نے نہایت ادب کے ساتھ سلام کر کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ سے یوں پریشان ہونے کی وجہ پوچھی۔ خلیفہ نے سر ہلاتے ہوئے تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر وزیر نے دھیمے سے کہا کہ حضور، رات کافی گہری ہو گئی ہے، چلیے ہمارے شہر میں گشت کرنے کا وقت ہے، جلدی سے لباس تبدیل کر لیجئے۔ اس طرح وہ دونوں معمولی لباس زیب تن کر کے اپنے چہرے کو تھوڑا سا چھپا کر مسافروں کے حلیے میں محل کے خفیہ دروازے سے باہر آ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ وہ انتہائی غور کے ساتھ گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ کہیں کوئی پریشان حال نظر آئے تو اس کی مدد کی جا سکے۔ حتیٰ کہ معمولی سے معمولی آواز بھی خلیفہ اور ان کے وزیر کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ ایک بازار کے چوراہے کے قریب پہنچ کر ہارون الرشید کے کان میں کسی فقیر کی صدا لگانے کی آواز پہنچی۔ آواز سن کر آپ چونک اٹھے کہ اتنی رات میں فقیر کی موجودگی، وہ بھی اس ویران بازار میں۔ آپ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے فقیر تک پہنچ گئے۔ جب آپ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تو پتہ چلا کہ فقیر دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اسی لیے اسے پتہ نہیں چلا ہوگا۔ فقیر نے ایک بار پھر اللہ کے نام پر کچھ مدد کا سوال کیا، جس پر خلیفہ نے اس کے ہاتھ میں ایک اشرفی تھما دی۔ اب جو ہی آپ اس کے پاس سے آگے بڑھے، اس فقیر نے آپ کا دامن تھام لیا اور بولا، بھائی تم نے مجھے اشرفی بھیک میں دی ہے، اب میری ایک درخواست ہے کہ میرے منہ پر ایک تماچا بھی لگا دو۔ خلیفہ حیران ہوا اور کہا، یہ کیسا تقاضا ہے؟ میں آپ کو بے سبب تماچا کیوں ماروں؟ یہ کہہ کر آپ جانے لگے، لیکن فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور ضد کرنے لگا، اگر نہیں ماریں گے تو آپ کا یہ سکہ واپس لے لیجئے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فقیر کی ضد دیکھ کر خلیفہ ہارون الرشید نے ہلکا سا تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن چند قدم آگے بڑھے تھے کہ خلیفہ کو تعجب ہوا کہ آخر اس فقیر کی یہ کیسی ضد ہے، یقیناً اس میں کوئی گہرا راز پوشیدہ ہوگا، اور اس کو جاننے کا تجسس آپ کے دل میں بڑھا اور آپ نے اپنے وزیر کے ہاتھ فقیر کو پیغام بھجوایا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ تمہیں جو اشرفی ملی ہے وہ خلیفہ ہارون الرشید نے دی ہے، اب تم کل صبح خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونا، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ اور وزیر چل دیے۔ اب کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑی کو بری طرح سے مار رہا ہے۔ یہ ظالمانہ منظر دیکھ کر خلیفہ سے رہا نہ گیا اور جعفر سے کہا کہ جاؤ اور اسے ہمارے بارے میں بتاؤ اور اس سے کہہ دو کہ ہم نے اسے صبح دربار میں طلب کیا ہے۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ دونوں پھر آگے بڑھے تو انہیں شہر کے کنارے پر ایک بڑا عالی شان اور خوبصورت مکان نظر آیا۔
खलीफा ने वजीर से कहा, लगता है यह मकान हमारे किसी आला ओहदेदार का है। खलीफा ने वजीर से कहा कि जाओ और ज़रा पता करो कि यह मकान किसका है और वो शख्स अपने हमसायों के साथ कैसा बर्ताव करता है। वजीर ने मालूमात इकट्ठी की तो उन्हें पता चला कि यह मकान एक शख्स का है जिसका नाम हसन है, जो कि एक ताजर और कारखानादार है। पहले यह आदमी बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसका गुजर बसर होता था। फिर अचानक उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत आ गई और उसने ये आलीशान घर बनाया। चूंकि पहले ही आदमी रस्सियाँ बनाता था, रस्सियाँ बटता था, और अब उसने रस्सियाँ बटने के लिए कारखाने बना रखे हैं, इसलिए लोग उसको हसन ईबाल कहते हैं। अलबत्ता उसका अपने पड़ोसियों और दीगर हमसायों के साथ सलूक बहुत अच्छा है। ये बातें सुनकर खलीफा ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि आखिरकार इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, इसलिए इसको भी कल दोपहर दरबार में तलब कर लिया जाए। उसके बाद खलीफा और वजीर दोनों महल की तरफ रवाना हो गए और खुफिया दरवाजे से महल में दाखिल होने के बाद जाफर ने हसन को भी अगले रोज महल में हाजिर होने का पैगाम नामा जारी कर दिया। अब अगली दोपहर को तीनों शख्स, अंधा फकीर, घोड़ी को मारने वाला नौजवान और हसन ईबाल खलीफा के दरबार में हाजिर हो गए। खलीफा ने सबसे पहले अंधे फकीर से सवाल किया, आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? भीख मांगने के साथ ये मुंह पर तमाचा खाने का माजरा क्या है? क्या राज है इसमें? फकीर ने अपनी कहानी बयान करना शुरू कर दी। कहने लगा, हुजूर, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं बगदाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद ने बड़ी मेहनत करके मेरे लिए बहुत पैसा जमा किया, फिर उनका इंतकाल हो गया और मैंने सब जमा पूंजी ऐश की जिंदगी गुजारने में ख़त्म कर दी। उसके बाद मेरे हालात बदतर होना शुरू हो गए। मेरी बीवी ने कहा कि आप मवेशी पाल लें और उनकी तिजारत शुरू कर दें। इस तरह मैंने 2 ऊंट खरीदे, उनका खूब ख्याल रखा और उन पर दूसरे शहर से लोगों का तिजारत का माल लाने और ले जाने का काम शुरू कर दिया। जो कुछ मिलता उसे जमा करता और मजीद ऊंट खरीद लेता। इस तरह जल्द ही मेरे पास 40 ऊंट जमा हो गए और एक रोज मैं एक ताजर का माल बसरा शहर में फरोख्त करके बगदाद वापस आ रहा था कि मुझे रात हो गई। मैंने ऊंटों के पैर बांधे और उन्हें घास के नजदीक छोड़ दिया कि वो भी कुछ खा लें। मैं खुद आग जलाकर बैठ गया और अपने लिए खाना बना लिया। अभी मैं खाना बना ही रहा था कि एक मुसाफिर आग की रोशनी देखकर मेरे करीब आ गया। हुलिया देखकर वो कोई दरवेश मालूम होता था। उसने मुझसे कुछ देर आग के पास बैठने की इजाजत मांगी, जो मैंने उसे दे दी। अब वो मेरे पास बैठ गया। मैंने उसे अपने साथ खाने में शरीक किया। उसके बाद हम कुछ गुफ्तगू करने लगे। उसने मुझे बताया कि करीब की पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर उसमें से तुम कुछ सिर्फ अपने आधे ऊंटों पर ला दो तो भी खजाना इतना है कि तुम्हारी 7 नस्लें आराम की जिंदगी गुजार सकती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे लालच आया और मैंने उससे कहा कि मुझे वो जगह दिखा दो। उस दरवेश ने एक शर्त रखी कि मैं अपने 40 ऊंटों में से 20 ऊंट उसे दे दूंगा। मैंने लालच के मारे फौरन उसकी शर्त मंजूर कर ली। चुनांचे सुबह होते ही वो मुझे एक दर्रानुमा जगह पर ले गया। वो पहाड़ों के दरमियान एक घाटी सी थी। वहां सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने लकड़ियां जमा करके आग जलाई और उस आग के पास बैठकर कुछ पढ़ने लगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके बाद उसने अपनी जेब से एक डबिया निकालकर उसमें से कुछ पाउडर सा आग में डाला और उसके बाद उठकर एक दूसरी जगह पर चला गया। मैं क्या देखता हूं कि उस मट्टी के नीचे से एक आलीशान दरवाजा नमूदार हुआ। फिर उस दरवेश ने मुझसे कहा कि इस दरवाजे को खोलो। हम वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। वहां सोने के अंबार लगे थे। इतना खजाना था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने अपने 20 ऊंटों पर खूब सोना लादा, लेकिन उस दरवेश ने वहां से कुछ ना लिया और मुझे काम करने दिया।
अपने 20 ऊंट सोने जवाहरात से लादने के बाद हम वहां से बाहर आ गए। उस दरवेश ने वो दरवाजा वापस बंद कर दिया और शर्त के मुताबिक 20 खाली ऊंटों को लेकर दूसरी तरफ रवाना हो गया और मैं अपने लदे हुए ऊंट लेकर बगदाद की जानब चल दिया। अब कुछ ही दूर आया हूंगा कि मुझे मेरे ऊंटों का ख्याल आया। मैंने सोचा कि वो तो दरवेश है, जब उसने खजाने में से कुछ न लिया तो उसे 20 ऊंटों की क्या जरूरत है। मैं जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी जानब लपका और जल्द ही उसके पास पहुंच गया। मैंने बड़े मीठे अंदाज में उसे जाकर कहा कि बाबा, आप तो तरके दुनिया हैं, आपको 20 ऊंटों की क्या जरूरत है। मैंने एक उम्र गुजारी है ऊंट पालने में, आप कहाँ इनका ख्याल रख पाएंगे। ऐसा करें, 5 ऊंट मुझे वापस कर दें। उस दरवेश ने बिना कुछ बोले 5 ऊंट मेरे हवाले कर दिए और मैं उन्हें लेकर चला आया। लेकिन उसकी खामोशी ने मेरा लालच और भी बढ़ा दिया और मैंने सोचा कि यकीनन उसे मेरी बात दुरुस्त लगी होगी, इसलिए उसने बिना कुछ बोले मुझे ऊंट वापस कर दिए। अब मैंने सोचा कि मजीद 5 ऊंट लेकर आता हूं और एक बार फिर उसकी तरफ रवाना हो गया और जाकर उसे फिर वही कहा कि जनाब, मुझे लगता है कि 15 ऊंट भी आप पर बोझ बन जाएंगे, क्यों ना मैं 5 ऊंट मजीद अपने साथ ले जाऊं, आप कहां परेशान होंगे। उसने इस बार भी बगैर किसी बातचीत के मुझे 5 ऊंट वापस कर दिए। मैं उन्हें लेकर वापस आ गया, लेकिन मेरा लालच कि मैं अभी बाज न आया और एक बार फिर उसके पास गया और ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके मैंने उससे सारे ऊंट ले लिए। अब वो एक बार फिर खाली हाथ था। जैसे ही वो जानने लगा मेरी बदबख्ती कि मुझे मेरे लालच ने एक बार फिर उकसाया और मुझे ख्याल आया कि उसके पास चांदी की जो डब्बी है वो भी ले लूं, भला उस दरवेश को उसकी क्या जरूरत। मैंने एकदम पलटकर उससे वो डिबिया भी मांग ली, लेकिन उसने मुझे वो डिबिया देने से इनकार कर दिया। उसके इनकार ने मुझे तशवीश में डाल दिया कि यकीनन उसमें कोई ऐसी चीज है जो बहुत कीमती है और मैं उससे वो लेने पर इसरार करने लगा, लेकिन वो मुसलसल मना करता रहा, हत्ता कि मैंने अपना खंजर निकाल लिया और उसे कत्ल करने का इरादा कर लिया और उस पर हमला कर दिया। वो कहने लगा, इसे ले लो, और उसने वो चांदी की डिबिया मेरे हवाले कर दी। तो मैंने उससे पूछा, इसमें क्या है। वो दरवेश बोला, इसमें खास किस्म का सुरमा है जिसे तुम अगर अपनी दाईं आंख में लगाओगे तो तुम्हें जमीन के नीचे पोशीदा खजाने नजर आने लगेंगे। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि मेरी दाईं आंख में सुरमा लगा दो। उसने ऐसा ही किया। जो ही सुरमा लगा, मुझे हर जगह जमीन के नीचे छुपे खजाने नजर आने लगे। मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने सोचा, अगर मैं उसे अपनी दूसरी आंख में भी लगा लूं तो मुझे और भी खजाने दिखेंगे। और मैंने उसे कहा कि अब तुम ये सुरमा मेरी बाईं आंख में लगा दो। वो दरवेश बोला, इसे कभी अपनी बाईं आंख में मत लगाना, वरना नुकसान उठाओगे। उसकी ये बात सुनकर मैंने सोचा कि जरूर इसमें कोई बड़ा फायदा है और यह दरवेश मुझे उससे महरूम रखना चाहता है। मैंने जबरदस्ती उसे कहा कि मेरी बाईं आंख में सुरमा लगा दो। वो दरवेश बोला कि तुम याद रखना कि तुम खुद मुझे ऐसा करने का कह रहे हो। जो भी नुकसान हो तुम मुझे उसका गुनाहगार नहीं ठहराओगे। और ये सब कहकर उसने मेरी बाईं आंख में सुरमा डाल दिया और यहां से मेरी बदबख्ती आ गई। जो ही उसने मेरी दूसरी आंख में सुरमा डाला, मेरी जिंदगी में तारीकी छा गई और मैं उसी वक्त दोनों आंखों से अंधा हो गया। मैं बहुत चीखा चिल्लाया और उसके मिन्नतें की कि मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी आंखें मुझे वापस कर दो। लेकिन वो बोला, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पहले ही तुमको खबरदार कर दिया था। इतना कहने के बाद वो मेरे 40 ऊंट लेकर वहां से चला गया। मैं वहीं बैठकर रोने लगा। कुछ देर में वहां से काफिला गुजरा और मेरी दरख्वास्त पर वो मुझे यहां बगदाद के बाजार में छोड़ गए। मैं अपने घर नहीं लौटा और यहीं भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूं और अपने आप को सजा देने के लिए हर भीख देने वाले से अपने मुंह पर तमाचा मारने का कहता हूं। बस हुजूर, यही मेरी दुख भरी दास्तान है।